डॉक्यूमेंट फाइल किया कि नहीं आपने? कर दिया ना, इनको कॉपी भी दे दी, उसने रिसीव, कोई अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया, जस्ट सीधे आपने अरे सर ऑब्जेक्शन का मैटर तो है ही नहीं, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ ये वाला कर दिया। कब फाइल किया आपने? सुबह सुबह आपको लगता है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए। नहीं नहीं, हमें क्या लगता है, आई विल डील इट, आई डोंट नीड योर सजेशन, डोंट नीड योर सजेशन, दिस इज नॉट द वे टू, नहीं, व्हाट इज वेयर, व्हाट इज नॉट द वे, you are nobody to tell me. then argue Yes, this I am case and arguing get here. the You don't say me anything. I am arguing with Yes, for yes, the you honorable argue, court. argue, Yes, argue, please. you are nobody to say me. No, I'm not, I'm certainly not nobody to say Yes, you. yes, yes. Please do it. Lordship, Yes. in the last time, in the open court, Lordship, this order was dictated by Honorable Lordship, that their personal appearances today, but that order was sent. I don't know what was the circumstances, but I was Lord, not his called. this Lordship, baseless allegation, I'm that seriously will opposing, help us. Lord. In my absence, he has misleaded this honorable court and got the order. Lordship, passed. I have Lord, open. this is not the way to submit before. We are the integral part of justice system, Lord. Bar and bench both are, Lord. We have the responsibility to assist your Lordship. In my absence, he got the order, and when I submitted, I called him twice. My juniors called him twice. He is just saying that I don't know under what circumstances this court. I am seriously opposing this. Lord, this is not actually the. It's a very serious objection, Lord. डॉक्यूमेंट नंबर है नहीं है? डॉक्यूमेंट नंबर He is the person, Lord. He has called up me back. He Lord, told that, अरे आपने कैसे Lord, कॉल कर दिया? आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। Why you have called me? Why you? No, why not you? Because honorable court told me कि you Lordship, please call him. It is a. लॉर्ड आपके डायरेक्शन पे मैंने इनको कॉल किया था, अदरवाइज मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगता कि मैं इनको कॉल करूंगा और इस तरह से सबमिशन भी कोर्ट के सामने मैं जब प्रेजेंट हूं तो आप नहीं बोलेंगे। Court can. Lord, I have never in my entire practice, Lord, of 25 years, I have never misleaded, I have never concealed any fact from any court, Lord. That's it. What kind of submission he is making? Lordship, He is making the allegation against me and as well as before the court, against the court, Lord. Lordship, This is the behavior of a senior counsel. Lordship, this is a. Lord, if you want to file a petition, Lordship, listen, allow the this is advocate. my compliance Assistant affidavit, Lord. Advocate General, Lordship, in my take absence. the cognizance. Lordship, What you have done in my absence? I will not talk to anything with you. No, you should not address- be. You should not. This is not the You problem. address to You the speak court. to the court and You say, address to the under court. what I am circumstances, telling what you. kind of circumstances is You should not serve me. No, you should not tell allegation against the court. I will tell you everything. You will not. What? Who are you? Who authority you have? Honorable DB also and then single judge also Lordship. Every order they have flouted Lordship. They have not complied the orders Lordship. It's very clear case Lordship. Kindly see the Supreme Court order Lordship. It has issued on 27 July 2024. Lords, पहले ये बताइए ऑनरेबल डेट कोर्ट के ऑर्डर का वो ऑपरेटिव पार्ट कौन से पैरा? yes Lordship, yes Lordship इनके Lordship इसी ऑर्डर में दिया है. Let him to file objection. बताइए डेट कोर्ट के हाँ मैं वो बता दी Lordship. Kindly see Lordship the in contempt petition Lordship. हाँ आपने Page number 20 Lordship. Page number 20 where learned single judge has given number 1. The said order is accordingly set aside and this petition is allowed with following directions. Number 1. पैरा नंबर Page number 20 Lordship. पैरा नंबर Lordship 19. Para number 19. Lordship, number 1 is given directed by this honorable court Lordship. The respondent shall consider the case of the petitioner for regular. 14/16 का ऑर्डर सेट किया और पेज नंबर 1 जी. In the last in the para number 19 Lordship, this judgment order has been concluded by the learned single judge Lordship as below Lordship. Number 1, the respondent shall consider the case of the petitioner for regularization
with effect from 6th July 1998, when his junior respondent number 4 was regularized within a period of 45 days. This shall take into account the recommendation of the committee dated 14 September 2016 and again P2. Lordship, P2 कौन सा है बताइए? P2 बताइए। ये तो लॉर्डशिप रिकमेंडेशन कमेटी का लेटर है P2, और P2 लॉर्डशिप जो है वो इस राइट है। नहीं, ये तो कंटेंट में लगा है लॉर्डशिप, P2 तो रिट पिटिशन में लगेगा WP में। तो वो P2 तो मुझे देखना पड़ेगा। अब आपको P2 भी हम दिखा देंगे, P2 भी मिल जाएगा लॉर्डशिप। अभी मैं देखता हूँ P2 भी मिल जाएगा, पूरी पिटिशन मिल जाएगी, बट मेन ग्रीवेंसेस इज लॉर्डशिप, दिस इज कंटेम्प्ट मैटर लॉर्डशिप, आई एम आर्ग्यूइंग द कंटेम्प्ट पिटिशन लॉर्डशिप, नॉट द रिट पिटिशन और रिट अपील लॉर्डशिप। तो साहब इतना ज्ञान तो मुझे भी है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो अब लॉर्डशिप भी कंटेम्प्ट में यदि P2 बताऊंगा तो लॉर्डशिप फिर से फुल सिंस बिगिनिंग चालू हो जाएगा, 20 इयर्स का केस लड़ रहा है लॉर्डशिप। लाइन पढ़ो उसको, उसमें क्या लिखा है। ठीक है लॉर्डशिप, P2 का आप P2 का मैंने देखा। ऑनरेबल सुजय पॉल साहब का ऑर्डर पढ़ो ना। हाँ, They shall take into account the recommendation of communication southern और सोलर election P2। Yes. तब वो रिकमेंडेशन तो मुझे कंटेम्प्ट से वो जुड़ा मैटर है ना वो ठीक है, एनेक्जेट P2 में लॉर्डशिप आपको मैनेज करता है, आई विल मैनेज इट सो वेरी शॉर्टली। एंड लॉर्डशिप नंबर 2 देख, If the petition is found suitable for regularization, the necessary order for regularization with effect from 6/7/98 shall be passed within the appointed period. In view of the order number 3, shall pass proper regarding grant of back wages, है ना? And in the event of regularization with effect from petition shall get the benefit of council petition of pay and other benefit except back wages. If petitioner is regularized, the respondent shall grant his appropriate seniority from back date in the seniority list. If any senior to the petitioner is promoted in the meantime, the respondent shall consider the case of the petitioner by or promotion by holding a new DPC, है ना? ये अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आप ये कह रहे हो कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे तो खारिज हो गई है, ये कह रहे हो ना आप? इनकी पिटिशन एसएलटी खारिज हो इन्होंने ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की है जी 29/10/24 जी तो ऑनरेबल पॉल साहब के जो ऑब्जेक्टिव पैरा था 19 छह चीजें उन्होंने कही जी। तो आपको इसलिए रिजल्टर फाइल करना चाहिए कि साहब इसमें ये छह चीजें कही गई थी 29/10/24 में इसका पालन हुआ, इसका नहीं हुआ, तो एक बता देते एक सिस्टमेटिक बात बन जाए। लॉर्डशिप मैं ओपन ही बता देता हूँ ना लॉर्डशिप, नहीं ले हमें लिखित चाहिए, हम ओपन नहीं लिखित में क्या लॉर्डशिप, सपोज आपको बोल रहे हैं बस। सपोज रिजॉइंडर मुझे नहीं फाइल करना तो क्या कंटेम्प्ट नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो बताइए। हम आप अभी रिजॉइंडर से रिट पिटिशन तो हम कंटेम्प्ट में रिजॉइंडर क्यों फाइल करूँ? हमसे सवाल नहीं करिए, हम जो आपको कोई अवैध मांग नहीं कर रहे, अब आपसे एक ही बात कह रहे हैं। Objection मिलो। क्या ऑनरेबल पॉल साहब के ऑर्डर में 6 चीजें थी, जी। इन्होंने जो कंप्लायंस किया, इन्होंने आपको कुछ रेफरेंस भी किया, तो कौन सी चीज हो गई कि आप तो लॉर्डशिप रिस्पोंडेंट से पूछो उनमें 6 में क्या कंप्लायंस किया है, ये तो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? डोंट आस्क मी कि हम इनसे पूछो, आपसे क्यों नहीं पूछ सकते? सर तो मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी कंप्लायंस नहीं हुआ, मैं तो ओपन नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कंप्लायंस नहीं हुआ लॉर्डशिप। नियमित किया कि नहीं? नहीं किया लॉर्डशिप। तो इसमें तो लिखा है, लिखा भर है, लिखने से सर लॉर्डशिप नियमित ऐसा होता है कि योर अर्लियर सीनियरिटी वाज 100, नाउ योर सीनियरिटी इज रिड्यूस्ड टू 1, दिस इज ये होता है नियमित। कहाँ ऐसा लिखा उन्होंने? तो रेगुलराइज फ्रॉम सीधे तो हम कह रहे तो ये कहाँ लिखा था? ऐसा नियमित गवर्नमेंट में कहीं होता नहीं, मेरे को तो प्रैक्टिस करते हुए सर सफिशिएंट टाइम हो गया। जॉब कर रहे हैं मैं तो सर 40 इयर्स रहा हूँ, 40 इयर्स सर। जी। कौन से विभाग में थे? मैं तो सर स्टेट में भी था और बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, और मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑफिसर एसोसिएशन में और लीडरशिप में भी था, और मैं सब यही काम करता था। और सर लॉर्डशिप एक क्लियर कट कंटेम्प्ट है लॉर्डशिप, बिल्कुल क्लियर कट। आप लॉर्डशिप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या कंप्लायंस किया, क्या नहीं किया, कंटेम्प्ट बनता है। से बोल रहे हैं कि आप लिख के दीजिए 1 2 3 4 5 ये कंप्लायंस नहीं हुआ, केवल इतना पार्ट हुआ, ये नहीं हुआ। लॉर्डशिप मैं अपने स्टेटमेंट का मेरा अंडरटेकिंग, मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए कि क्या क्या कंप्लायंस नहीं हुआ। नहीं हम आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा चाहिए हम। सब लॉर्डशिप एक तो कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट ने किया, मुझसे एक्सप्रेशन मांगे। आफ्टर अर्निंग फॉर सम टाइम
that counsel for the petitioner has no faith in this court, therefore this before another bench. Lord. Deeply obliged. Lordship, डेट भी दे दीजिए लॉर्डशिप, डेट दे दीजिए प्लीज, बिकॉज इट वॉज लिस्टेड टुडे। कल की डेट दे दीजिए लॉर्डशिप। जब तो नहीं रहे तो डेट कैसे दे देंगे? नहीं क्यों नहीं देंगे डेट, क्यों नहीं देंगे नेक्स्ट डेट, क्यों नहीं देंगे नेक्स्ट डेट, कैसे नहीं मिलती नेक्स्ट डेट, क्यों नहीं? मैं तो डेट मांग रहा हूँ ना, ये थोड़ा मांगो डिसीजन दे लॉर्ड दीजिए। आई एम सॉरी बट ये फील किया कि आपने ऑनरेबल कोर्ट और मेरे पे भी एलिगेशन लगा दिया इन्होंने। आई एम वेरी सॉरी बट ये मैंने कभी नहीं सुना था किसी काउंसिल से जो मेरे से, वकील साहब की अपनी इच्छा है, वो जो महसूस कर रहे बोल रहे हैं। अब वो लेकिन गलत है मिलॉर्ड। कोर्ट पे हमको भी लगा दे चलेगा, कह रहे कोर्ट कौन से सर्कमस्टांस में कोर्ट पे मिलॉर्ड, इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। देखो, जब हम कोर्ट केस को रिलीज क्या आपकी बात नहीं हो रही है? तो आज की डेट सिर्फ इसीलिए थी लॉर्डशिप, बढ़ जाएगी तो नेक्स्ट डेट दे दीजिए तो लॉर्डशिप। कल का देना, कल दे दीजिए, हाँ कल दे। यस, लिख दीजिए टॉप ऑफ द लिस्ट लगाए, केस हो गई अभी। हम क्लिप लेके आएंगे लॉर्डशिप, क्लिप भी लेके आएंगे। हाँ लिस्ट नहीं करते जी, क्या लिखा? लिस्ट बिफोर एनदर बेंच टुमारो, बस हाँ तो ठीक है लॉर्डशिप, बस हाजिर आना और कुछ नहीं। ठीक ऑब्लाइज लॉर्डशिप, ऑब्लाइज।